Good morning. So let's start today with the part of solutions and that too with the part of colligative properties. Now there are being a lot of derivations being written on the board. So I'll keep on explaining you one by one very slowly. Guys, if these derivations are done, then today kind of we would have or we would be able to complete the entire chapter today. Um, Still, there is this, abnormal masses and the want-of factor, which would be remaining tomorrow, and we would be completing it with the part of numericals. Want-of factor and abnormal masses would hardly not take around more than 5 minutes, and then we'll only write the numericals. So we'll invest furthermore 2 days on only writing the numericals, around say 5 or 6 numericals from CBSE board book and 5 and 6 numericals from the Maharashtra State board book or whichever book you feel like. So we'll be writing around 5 questions in the next 2 days, and then we would end up the chapter. Okay, now so till now what have we studied in solutions? We studied that solution would comprise of two things, that is solute and solvent. उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग टर्म्स पढ़े लाइक नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद में हम लोगों ने बात किया था वेपर प्रेशर के बारे में, देन हमने बात किया हेनरीज लॉ के बारे में, देन हमने बात किया राउल्ट्स लॉ के बारे में. अब हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फिर हमने बात किया था आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Now before we start colligative properties, let's understand what do you mean by the term colligative properties. Colligative properties are those properties which only depend on the concentration of the solute particles or on the number of solute particles. Very important term. Colligative properties are those properties which only depend on the concentration or the number of solute particles present in the solution. Okay. It does not actually depend upon the identity of the solute particles कि वो किस तरह के हैं, but it only depends upon what? That is number of the solute particles present in the solvent. Fine. Now let's talk about now the word solute and solvent. तो मैंने आपको जैसे अभी तक इतने बार बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी A लिखा हुआ आएगा it will always be solvent. जहां पर भी B लिखा हुआ आएगा it will be always solute. तो सपोज करो, और जहां जहां पर भी मैं आपकी बार से W लिखूंगा that means given mass. जहां पर भी मैं M लिखूंगा that means molar mass. So you need to just remember these terms. हम लोगों ने अभी तक ये देखा था that as we are going to add a non-volatile solute to a solvent, then क्या होगा, ऊपर की तरफ में जो आपका जो सरफेस फिनोमेना है एवेपोरेशन का या बॉइलिंग का, एवेपोरेशन का, नाउ ये सरफेस ग्रेजुअली कम होना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो टेकिंग इट्स प्लेस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे कम होना चालू हो जाएगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिलेटिव? आमतौर पे जब भी कभी आप किसी भी कोचिंग या किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज या कोई भी टेस्ट या कुछ भी चीज़ का आपको परफॉर्मेंस चेक करना होता है, आप कैसे चेक करते हो? आप बोलोगे सर ऑफकोर्स हमें मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स के हिसाब से करते हो. नहीं, हाउ यू शुड बी कैलकुलेटिंग योर स्कोर्स is not with the part of whether you got 90% or 95%, but the right way of calculating your scores should be लास्ट टाइम पे आपके कितने स्कोर्स आए थे. मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने मेरे लास्ट टाइम पे मार्क्स आए 90, ओके, क्या 75 लास्ट टाइम पे. अब मैंने इम्प्रूव किया और अच्छे ढंग से पढ़ाई करी और मेरे मार्क्स आ गए इस बार 80. सो व्हाट डू यू थिंक इज द इम्प्रूवमेंट? दैट इज 80 minus 75, करेक्ट? द डिफरेंस इम्प्रूवमेंट अपॉन व्हाट वाज द प्रीवियस वन. पहले कितना था? 75. तो इससे और इनटू 100, 1000 जो भी मुझे करना होगा परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. जैसे मैंने बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि उसमें एसिडिक एसिड है या विनेगर, इथाइल अल्कोहल है या बेंजीन है या कुछ और. वो केवल डिपेंड करेगा कि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स होंगे एंड प्योर सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल्स होंगे. दैट्स ऑल. नाउ सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुल मिलाकर के 4 होते हैं. फर्स्ट, देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट,
रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, जहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब पहले से कितना कम होगा। ओके। सेकेंड इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। कॉमन सेंस है, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। कॉमन सेंस वंस अगेन, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज गेटिंग इंक्रीज सो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चालू हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज द वर्ड ऑस्मोसिस। लेट्स टॉक इट अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। What do you mean by relative? Relative का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मैथ्स के अंदर उसको अपन डी बोलते हैं, ओके, एंड इन केमिस्ट्री वी कॉल इट एज डेल्टा। सो डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा? पी प्योर सॉल्वेंट का मतलब प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ द रिड्यूस्ड क्वांटिटी जिसके अंदर आपने सॉल्यूट डाल दिया है। सो कुछ चीजें ध्यान रख लेना प्लीज। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स पी प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ द इम्प्योर वन, या जिसमें आपने कुछ सॉल्यूट डाल दिया है। सो डेल्टा पी अपॉन, अब खुद सोचो मैं बेस किसको लूंगा। हमेशा ध्यान रखना प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन व्हाट? हायर देन पी। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? पी डिग्री। तो अब क्या करोगे? डेल्टा पी का मतलब पी डिग्री माइनस पी। सिंपल। ये टर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इनफैक्ट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू सी इट वेरी केयरफुली। सो डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू पी डिग्री, क्योंकि वो हायर था, माइनस अब तो वेपर प्रेशर कम हो गया है अब, तो इसका मतलब पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। ये अपॉन पी डिग्री क्यों लिया? याद करो, इंप्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओरिजिनल कितना था? पी डिग्री। So P degree minus P is directly proportional to what? XP. So relative lowering का मतलब क्या हुआ? अभी आपने बोला था it's a colligative property to it only depends upon the concentration of the solute. So what is the concentration of the solute? B is solute. So that is X का मतलब होता है mole fraction of the solute. So delta P upon P degree A should be equals to mole fraction of the solute. इतना आ गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने डेल्टा पी की जगह पर लिख दिया पी ए माइनस या पी ए डिग्री माइनस पी ए। व्हाट डू यू मीन बाय पी ए डिग्री? पी ए डिग्री का मतलब क्या हुआ? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट माइनस, अब जब आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, सो प्योर सॉल्वेंट हायर होगा और कंपैरेटिवली सॉल्यूट डाला हुआ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो पी ए डिग्री माइनस पी ए अपॉन पी ए डिग्री पहले से ही है, शुड बी इक्वल्स टू एक्स पी। इसका मतलब क्या है? डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? तो यहां पर लिख देता हूं, और डेल्टा पी शुड बी इक्वल्स टू पी ए डिग्री माइनस पी ए। सो मैंने वैसे वैल्यू पुट कर दिया। नाउ पी ए डिग्री माइनस पी ए अपॉन पी ए डिग्री, सेम टू सेम, नो चेंज। अब आता है क्वेश्चन कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि आप एक्स बी निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द न्यूमरेटर होल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ओके, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन number of moles of solute plus solvent, given mass of the solvent upon molar mass of the solvent plus given mass of the solute upon molar mass of the solute. Very important step. Now what do you mean by this step sir? Actually इसका सिंपल मतलब है बस मैंने XB की जगह पर उसका फॉर्मूला पुट कर दिया है मोल फ्रैक्शन का, that's all, nothing. Now comes the question, सपोज करो गाइस एक बकेट है मेरे पास में, उस बकेट में पानी भरा हुआ है which is pure water. अब मैंने इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक मैंने कुछ सोडियम क्लोराइड डाल दिया, नमक डाल दिया, करेक्ट। नाउ व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? कॉमन सेंस कम। दैट्स द रीजन वाई उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। नाउ अब इसका मतलब है मैंने इतनी बड़ी बकेट में एक आधा चम्मच मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया। इतनी बड़ी बकेट में कितने मोल्स ऑफ वाटर होगा? अरबों। और मैंने कितना सा चम्मच डाला है? इतना सा चम्मच नमक। उसके मोल्स कितने होंगे? बट इतने से, वाइल पानी इतना सारा।
अब सपोज कर लो यदि मेरे पास में 1 करोड़ मोल्स हैं वाटर के और मेरे पास में 1000 मोल्स हैं NaCl के, दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर कॉमन सेंस, 1 करोड़ 1000, बट डोंट यू थिंक 1 करोड़ 1000 कौन बोलता है? 1 करोड़ प्लस 1000 इक्वल्स टू 1 करोड़ ना, मतलब दोनों सेम ही तो हुए। 1 करोड़ में 1000 रुपए आप दोगे या नहीं दोगे, क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट? सो इन द सेम वे, इफ आपने WA/MA मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किया, तो ध्यान रखना सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है क्या मैं इसमें से WB/MB को इरेज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स यस, आई कैन, बिकॉज सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में बहुत कम होता है। बट देन कम्स द ओनली क्वेश्चन, सर यदि आप इस जगह को जीरो करोगे क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, तो फिर ये भी जीरो करना पड़ेगा। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज लेसर, आई एम ओनली सेइंग नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट इज वेरी वेरी लेस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को मैंने सॉल्यूशन में से जीरो कर दिया, since WB/MB is very very less as compared to this. So ये वाला पार्ट हो गया जीरो, तो अब क्या बचेगा? PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री should be equals to WB/MB अपॉन WA/MA। ये आ गया यहाँ पर। Then comes क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया होता है मॉलिक्यूलर मास निकालो, आइडियली दिस इज द फॉर्मूला। अब यदि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप क्या करोगे? ऑफ सॉल्यूट यू विल टेक दिस पार्ट ओवर देयर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो MB शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ये आ जाएगा क्या बोला, ये MB जो ये डिनोमिनेटर में था ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आएगा WB इंटू MA, WB इंटू MA बाई WA इंटू ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर आ जाएगी। सो जो PA डिग्री यहाँ पर डिनोमिनेटर में था वो आ गया न्यूमरेटर में, जो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में था वो आ गया डिनोमिनेटर में, एंड दैट्स ऑल। नाउ अंडरस्टैंड, जब भी कभी न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर में, तो वहां प्रॉब्लम ये नहीं होती कि बच्चों को ये सब नहीं आता है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी आप पहली बार देख रहे होगे तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, बट अदरवाइज इट इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज की केमिस्ट्री में कैसे प्रॉब्लम आएगी? जब क्वेश्चन आएगा द वेपर प्रेशर और द चेंज इन द वेपर प्रेशर वाज फाउंड टू बी इतना ATMs या इतना बार या इतना पास्कल्स, जब यदि वो चेंज इन बोल रहे होंगे इसका मतलब है उन्होंने डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू दे के रखी है। बट यदि वो आपको प्योर सॉल्वेंट और वो सॉल्यूट के साथ में दे रहे हैं तो फिर अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा माइनस करके। ओके, क्या जब कल क्वेश्चंस आएंगे तो ऑफ कोर्स आई टेल यू। नेक्स्ट पर आते हो, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब जब भी कभी किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर यदि आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका मतलब है कि उसका जो भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? किससे कम हो जाएगा? वो तो उतना ही रहेगा, बट जो सॉल्यूशन बना है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। Now let's stop this topic right over here and let's go back to the part of the history. आपको मालूम है in 1857 there was also a freedom struggle which was being done, which was very very famous. Why do you think उस टाइम पर देश आज़ाद क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली में हो जाना चाहिए था उसी टाइम पर ही, ब्रिटिशर्स should be thrown out at that particular time itself, but नहीं हुआ। Why? Because एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या एक पर्टिकुलर एरिया का वेपर प्रेशर बहुत बढ़ गया, वेपर प्रेशर रिवोल्ट बहुत बढ़ गया, बट क्या ये ऑल ओवर इंडिया में फैला? नहीं। सो क्या हुआ? सप्रेस बहुत जल्दी हो गया। अब इमेजिन करो व्हाट हैपेंड इन 1947 या उस पूरे के पूरे पैच में, द एंटायर कंट्री का जो वेपर प्रेशर था वो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब है अब जब वेपर प्रेशर ही इतना ज़्यादा है तो क्या आपको और हीट देने की ज़रूरत है? नहीं, अपने आप ही चीज़ें बॉयल करने लगी थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स भाग गए थे। While during the part of 1857, what happened? The vapor pressure was very very low. Since the vapor pressure was very very low, so every time it needs to be tweaked on.
कभी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कभी सत्याग्रह, कभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1857, आई एम टॉकिंग अबाउट आगे। इतने सारे मूवमेंट्स इसीलिए करने पड़े थे ताकि हीट को बढ़ाया जा सके। करेक्ट? ओके, नाउ so let's start with the part of elevation and boiling point. So what do you mean by the term elevation and boiling point? इसका मतलब ये हो गया that अब जब वेपर प्रेशर कम हो चुका है तो मुझे एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी टू इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर अगेन। इसका मतलब है जितना, मान लो पहले ये पूरा का पूरा वाटर 100 डिग्री पे फ्यूम करता, अब ये 100 डिग्री पे नहीं कर रहा है, अभी किस पे कर रहा है? 120, 130 पे। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला आता है डेल्टा टीबी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा टीबी? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेल्टा टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड टी, सपोज कर लो मैंने दो टर्म्स ले लिए यहां पर, डेल्टा TB should be equals to, that is T1 minus TO। जो आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया था, कॉमन सेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा और ओरिजिनल वाले का या प्योर सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, मतलब उसको पहले से ही कम था। सो दिस माइनस दिस करोगे उसको बोलते हैं डेल्टा TB। So now elevation in boiling point is also directly proportional to what? The pressure. Delta TB is directly proportional to pressure. आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये जो डिफरेंस है TB का ये भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ओके, कॉमन सेंस में आप जितना प्रेशर डालोगे उतनी चीज़ों को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा टू मूव इट अप। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ सिंपली सेड व्हाट, दैट डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। बट अभी तो आपने बोला कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। P का मतलब प्रेशर। तो इन दोनों मैंने इक्वेशन को किया तो ये आ गया, सो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। व्हाट इज XB? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। नाउ डेल्टा TB इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज नोन एज KXB, आई मीन K विच इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाउ डेल्टा TB इज इक्वल टू K की जगह पर K। अब याद है XB अपन ने यहां पर कैसे निकाला था? गिवन मास, आई मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, सो गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो वंस अगेन सेम पार्ट जो अपन ने यहाँ पर लेकर के आए थे वही वाला पार्ट यहाँ पर रख दिया XB की जगह पर, वापस से वही इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू K WB बाय MB अपॉन WA बाय MA। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएगा, सो ये बन जाएगा WB बाय WA इंटू MA अपॉन MB। व्हाट इज M? मोलर मास। व्हाट इज W? गिवन मास। मोलर मास का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लो किसी ने आपको बोला CO2, तो CO2 का मोलर मास होता है 44। कैसे? 12 प्लस 16 इंटू 2, 44। बट व्हाट इज गिवन मास? मैंने आपको 2 ग्राम दिया तो जो 2 ग्राम्स होगा दैट इज योर गिवन मास। गॉट इट? ओके, नाउ डेल्टा TB शुड बी इक्वल्स टू K। अब यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने MA इंटू WA को तो ऐसे ही छोड़ दिया। WB का मतलब होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो व्हाट इज गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट? गिवन मास अपॉन मोलर मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने WB अपॉन MB की जगह पर NB रख दिया विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और इन दोनों को एज इट इज। अब देखो डेल्टा TB शुड बी इक्वल्स टू K की जगह पर स्मॉल k पहले से था विच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर MA की जगह पर MA आ चुका है। व्हाट इज दिस NB बाय WA? मतलब ये इसका मतलब क्या होता है? नाउ सी दिस पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक डेफिनेशन पढ़ा था कुछ यहां पर, वेयर M मीन्स मोलालिटी। What is molality? Number of moles of the solute
number of moles of the solute upon what mass of the solvent। तो वेरी सिंपल। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, इधर पर यहां पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या मैं इसको मोलालिटी लिख सकता हूं, एंड मोलालिटी इज शोन बाय स्मॉल m और कैपिटल M। स्मॉल m, तो मैंने यहां पर लिख दिया डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के, ma की जगह पर ma इनटू स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल m? मोलालिटी। अब क्या करोगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, मैंने अब जानबूझ के जो k इंटू एम ए है, दिस k इंटू एम ए को मैंने एक और एक कांस्टेंट बोल दिया विच इज कैपिटल के बी। व्हाट इज दिस कैपिटल के बी? कैपिटल के बी इज द प्रोडक्ट ऑफ k इंटू एम ए। सो व्हाट इज दिस कैपिटल के बी? दिस इज नोन एज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, सो Kb is equals to molar boiling point elevation or एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। गाइस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी एग्जाम में उन लोगों ने डायरेक्टली आपको मोलालिटी की वैल्यू दी होती है, केबी दिया होता है और बताओ डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आएगी। सो दैट्स करेक्ट। जब भी कभी आप कोई भी डिग्रीज लोगे तो प्लीज उसको केल्विन में चेंज कर देना। हाँ, यदि रिलेटिव हो तो दोनों को मतलब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट पर आता है, और डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, मैंने केबी की जगह पर केबी रखा। अब ये कहां से आ गया? एम की जगह पर अभी अपन ने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैंने एम बी यदि मान लो निकालना है, एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी वहां जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में के बी डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए, के बी डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। दैट्स ऑल गाइज। ये डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू गेट दिस डेरिवेशन राइट। प्लीज यदि आपको एक बार समझ में नहीं आए, इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नाउ let's move on to the third colligative property. So what is the third colligative property? Depression in the freezing point. अब पहले तो ये ध्यान रखना, भी मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा। खैर पहले तो आ जाते हैं इसके एग्जांपल पे, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। ना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपका कब हो जाता है, अभी उसके एग्जांपल अच्छा पहले ही करवा देता हूँ, उसके बाद में एग्जांपल देता हूँ। डिप्रेशन इन एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, सेम टू सेम फॉर्मूला डेल्टा टीएफ, बट इस बार उल्टा है। क्यों है उल्टा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसका मतलब है जहां पर यहां पर आप जब डेल्टा टीएफ की बात कर रहे हो तो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या हो जाता है, T0 माइनस T1। इसका मतलब T ओरिजिनल माइनस T वॉट, कम वाला। अब कॉमन सेंस है गाइस, T0 ओरिजिनल का तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा ना। सपोज कर लो 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो दैट पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट, अब जब डिप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो रहा है, नीचे माइनस में जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई T0 माइनस T1 करता है। जबकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था बॉइलिंग पॉइंट में, T1 माइनस T0, इसमें T0 माइनस T1, मतलब द ओल्डर वन माइनस द न्यूअर वन, यहाँ पर न्यूअर वन माइनस द ओल्डर वन। नाउ सेम फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम था, यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम आ जाएगा। व्हाट इज के एफ? दिस इज ऑल्सो नोन एज मोलर डिप्रेशन और मोलर कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोजेनिक डिप्रेशन और क्रायोजेनिक कांस्टेंट। ओके, नाउ सो के एफ इज नोन एज क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब जब एकदम बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से आप नीचे चले जाते हो। So formula is Mb is equals to Kf, same formula है, Mb is equals to Kf into Wb upon Wa into delta Tf। बस वो Tf इसलिए क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट, that's all। Now that is the reason why guys, जब भी कभी आपकी गाड़ियों के अंदर, पुरानी गाड़ियों के अंदर, व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, उनके रेडिएटर में पहले पानी डालते थे गाड़ी को कूल करने के लिए।
बट देन क्या होने लगा कि अलग अलग लोग कभी कभी ले जाने लगे, लद्दाख जाने लगे, व्हीकल की एक्सटेंसिव ड्राइविंग करने लगे, उस जगह पर बहुत सर्दियां होती हैं। तो ऐसे में जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0। और वहां तो है फ्रीजिंग पॉइंट -23। तो क्या होगा, रेडिएटर के अंदर पानी फूल जाएगा, मतलब सॉलिड बन जाएगा एंड द रेडिएटर टैंक विल बर्स्ट। करेक्ट। इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सिंपल, इथिलीन ग्लाइकॉल, थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देते हैं। ये इथिलीन ग्लाइकॉल एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और जैसे ही ये प्योर वाटर में जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है जब 0 पे उसको वाटर को जमना चाहिए, अब ये 0 पे नहीं जमेगा, अभी कितने पे जमेगा, अराउंड -42 -43 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब है गाड़ी आपकी एब्सोल्युटली फाइन रन करती रहेगी। इसी का एक और एग्जांपल होता है गाइस दैट इन द कोल्डर कंट्रीज बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहां पर। आपने देखा होगा वो छोटे छोटे बच्चे प्लोइंग कर रहे होते हैं रोड पर, तो बर्फ गिरी होती है ना। बर्फ का एक ही प्रॉब्लम है कि वो फ्रिक्शन अलाउ नहीं करती, इट्स अ बैड कंडक्टर दैट वे। ना यदि फ्रिक्शन अलाउ नहीं करेगी तो इसका मतलब है टायर्स का एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें आइस को बार बार हटाना पड़ेगा, बट आइस तो पूरे दिन गिर रही है, कब तक हटाते रहेंगे, और इतने बड़े एरिया में गिर रहे हैं। सो उससे बेटर है व्हाट डू दे डू इज देल पर्पसली, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले वहां पर होते हैं, वो टैंकर से भर भर करके सलाइन सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, नमक मिला हुआ पानी, और ये लाइन से रोड पर ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे। जब ये लोग रोड पर पूरा स्प्रेड कर देंगे तो क्या होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। ऊपर से जो बर्फ आ रही है वो 0 डिग्री पर ही है, पर जब वो नीचे की तरफ में आएगी, क्योंकि नीचे वाले का फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो चुका है, वो -23 पर जाके जमेगा। तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे जब ये आएगा बर्फ, वो नीचे जाके दोबारा से मेल्ट हो जाएगा पानी के फॉर्म में, एंड द व्हीकल्स कैन नाउ रन प्रीटी सेफली। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देन कम्स द वर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। But before understanding osmotic pressure, you need to understand the word osmosis. Very, very important word. What do you mean by the word osmosis? The passage, ढंग से सुनना, the passage of pure solvent, okay, the passage of pure solvent to the solution, or the passage of solvent particles from lower concentration towards the higher concentration will be known as osmosis. इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैंने एक जगह पर एक पानी रखा हुआ है प्योर वाटर, और एक जगह पर मैंने बहुत ही कोई गंदा सा या कोई सलाइन वाटर टाइप का रखा हुआ है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, बीच में एक SPM लगाते हैं। व्हाट इज दिस SPM? SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, आपकी स्किन, इट्स एन SPM। पिग्स ब्लैडर की जो स्किन होती है दैट इज आल्सो एन SPM। बहुत पतला सा एकदम एक पोर का साइज का एक कपड़ा या स्किन या कुछ भी, दैट इज नोन एज SPM। सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना इन विच द pure solvent will start traveling to where? To the impure one or to the solution, or the passage of solvent particles from lower concentration towards the higher concentration will be known as osmosis. Lower concentration से higher concentration. So example can be, suppose करो मेरे पास में वो water था और ये नमक का पानी था, और मैंने बीच में एक SPM लगा दिया। SPM मतलब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, जो भी ये जो पानी है, ये पानी के पार्टिकल्स उस तरफ में फ्लो करना चालू कर देंगे जहां पर नमक वाला पानी होगा, टू मेक श्योर दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वलाइज्ड और द वेपर प्रेशर इज इक्वलाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो देयर इज दिस बीकर, it is being joined, okay, with the help of another beaker. Fine. यहां पर मैंने बीच में कोई एक SPM लगा दिया। ओके, सो इस जगह पर मैंने लगा दिया क्या, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हो, कुछ चीजों को ही जाने देगा, बाकियों को नहीं। यहां पर है मेरे पास में वाटर, यहां पर है मेरे पास में सॉल्यूशन।
अब वाटर क्या करेगा, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोसिस। इसका मतलब है यदि मैंने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और मैंने यहां पर भी एक पिस्टन लगा दिया, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ में जाएगा वाइल ये पिस्टन ऊपर की तरफ में जाएगा, शोइंग दैट नाउ प्योर वाटर इज गोइंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहां से आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो प्योर यहां पर जाना चालू हो गए। दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। जिस जगह पर भी, जब दोनों मान लो लिक्विड लगे होते हैं और जिस जगह पर भी हायर प्रेशर होता है उस जगह पर क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस, उस जगह को बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। जिस जगह का भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। जिस जगह का भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दूसरे वाले से, देन इट इज नोन एज हाइपोटोनिक। और जब दोनों का सेम होगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब दोनों के वेपर प्रेशर सेम। हाइपरटोनिक मतलब किसी एक तरफ का ज्यादा, हाइपोटोनिक मतलब किसी एक तरफ का कम। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, आइसो मतलब इक्वल। दैट्स सो सिंपल। नाउ ये तो हो गया ऑस्मोसिस। यहाँ पर प्योर पानी क्या कर रहा है, गंदे वाले पानी की तरफ में जाकर के मिल रहा है। एंड इस पर्टिकुलर, ये मान लो यदि यहाँ पर एक पिस्टन है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ में बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, यदि मैंने ऊपर की तरफ ऐसे एक हाथ रख दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में हाथ पे धक्का लगेगा, बट हाथ भी एकदम रॉक सॉलिड की तरह यहाँ पर है, तो क्या होगा, ये रुक जाएगा और ऊपर जाएगा ही नहीं, और ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब है और वाटर के पार्टिकल्स अंदर एंटर ही नहीं करेंगे। सो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन is known as what? Is known as osmotic pressure. जब भी कभी डॉक्टर्स आपको सिरिंज लगाते हैं तो वो लोग उसके अंदर नॉर्मली कुछ ग्लूकोज या डिस्टिल वाटर या कुछ भी कोई सलाइन वाटर लेते हैं एंड देन आपको वो इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? बिकॉज यदि उन्होंने डायरेक्टली लगा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन का इतना डिफरेंट होगा कि जो सेल्स होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे। अनदर सिंपल एग्जाम्पल कैन बी, आपकी जब मॉम्स इस पर्टिकुलर सीजन में पिकल्स बनाते हैं, देखा है आम के ऊपर में बहुत सारा सॉल्ट डाल देती हैं, हल्दी एंड उन सब चीज़ों के साथ में। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, द हाइपरटोनिक वाला पार्ट, जो भी वाटर होगा प्योर वाला पार्ट जो आम के अंदर होगा, मैंगोज के अंदर होगा, इट इज गोइंग टू गो एंड फ्लो आउट टुवर्ड्स द पिकल्स। जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो आपके जो अचार है वो अच्छा बनेगा, सड़ेगा ही नहीं, ट्रांसपेरेंटी नहीं होती। ओके, नाउ सो ये तो हो गया ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर अप्लाइड onto this side or the pressure applied to stop the flow of solvent particles from lower concentration to higher concentration is known as osmosis. अब एक बात सोचो, कॉमन सेंस, अभी तक तो ये पार्टिकल्स प्योर से इम्प्योर जा रहे थे। अब यदि मान लो मैंने यहाँ पे प्रेशर और बढ़ाना चालू किया तो क्या होगा, धीरे धीरे जो गंदा पानी होगा उसमें से साफ पानी क्या होना चालू हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पर जाना चालू हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, योर फेवरेट वर्ड, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में होगा क्या, एक तरफ में आप इतना प्रेशर डाल रहे हो, बीच में SPM लगा हुआ है, यहां से जितना भी जो प्योर वाटर होगा केवल वही यहां पर जाएगा, बाकी इम्प्योर विल रिमेन ओवर हियर इटसेल्फ। सो दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज शोन बाय द सिंबल व्हाट, पाई। तो ये पाई वैल्यू मत डाल देना, ये सिंबल है, पाई इज इक्वल्स टू, या पाई V इज इक्वल्स टू nRT। और ये बाय द वे इक्वेशन होती है इसकी, पाई को मैंने यहीं छोड़ा, V को नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, N/V/RT। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसका फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन का, मोलैरिटी का, RITY। तो ये मैंने डाल दिया CRT। व्हाट इज C? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इन व्हाट, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। ओके, देन कम्स और पाई शुड बी इक्वल्स टू C। अब मैंने फॉर्मूला लिखा तो C का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, पहले से वॉल्यूम तो है यहाँ पर, RT/V, और MB निकालना है, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दैट्स ऑल इज द आंसर, काम खत्म। So how many colligative properties did we study? We studied 4 colligative properties. The first was the relative lowering in the vapor pressure. Second part was
depression in the freezing point, वो third था. Second was elevation in the boiling point, and fourth था osmotic pressure. Now what we are going to do tomorrow is we are going to take the want of factor, association, dissociation, end of the topic, and then we are going to move on to numerical. So कल का टारगेट है ये 2 टॉपिक्स और करीबन 5 या 6 न्यूमेरिकल्स. ठीक है गाइस, ये डेरिवेशंस को याद से करना. सो आई एम लीविंग दिस पर्टिकुलर साइड कंप्लीटली ब्लैंक फॉर यू. Please freeze the screen. Please do this derivation again and again. Write everything. What is x? What is b? What is a? What is p? What is pi? What is po? And if any doubt at all, please do ask. Thank you guys so much. Have a lovely day ahead. Bye-bye.